سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت ایک دوسرے کے ماتحت نہیں، ہم پلہ ہیں۔ 27ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت کے دائرہ اختیار پر اہم فیصلہ جاری۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے کے مطابق وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے دیگر عدالتوں پر لازم ہوں گے۔ آرٹیکل 189(1) عدالت کو دوسری عدالت کے ماتحت نہیں بناتا۔ آئینی اور غیر آئینی مقدمات کو ایک ساتھ چلانا آئینی پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے۔ سول نوعیت کی اپیلیں سپریم کورٹ میں ہی زیر سماعت رہیں گی۔ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کے مشترکہ فیصلے سے متعلق مقدمات الگ الگ کرنے کا حکم دے دیا۔ امریکی صدر نے پاکستان کی ایک اور بات مان لی۔ ہرمز میں پھنسے جہاز نکالنے کا پروجیکٹ فریڈم روک دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران اور امریکہ نے پروجیکٹ فریڈم کو مختصر مدت کے لیے روکنے پر اتفاق کر لیا۔ ناکہ بندی مکمل طور پر برقرار رہے گی۔ آبنائے ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت کے منصوبے کو عارضی طور پر روک دیا جائے گا۔ وقفے کا مقصد یہ جانچنا ہے کہ آیا مجوزہ معاہدے کو حتمی شکل دے کر اس پر دستخط کیے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ خطے میں کشیدگی کے خاتمے کا مشن۔ ایرانی وزیر خارجہ متحرک۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا وفد کے ہمراہ چین کا دورہ۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی کی چینی ہم منصب وانگ یی سے بیجنگ میں اہم ملاقات۔ خطے کی صورتحال، علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت اور دو طرفہ تعلقات پر گفتگو۔ چینی وزیر خارجہ نے ایران کے خلاف جنگ کو غیر قانونی قرار دیا۔ وانگ یی نے کہا کہ چین کشیدگی کم کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے۔ مکمل جنگ بندی ناگزیر ہے۔ خطہ نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔ دونوں فریقین کے درمیان براہ راست ملاقات ضروری ہے۔ عباس اراغچی نے کہا کہ چین کے مضبوط موقف کی قدر کرتے ہیں۔ ایران صرف ایک منصفانہ اور جامع معاہدہ ہی قبول کرے گا۔ امریکہ آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی حفاظت کے لیے تعیناتیاں کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے پروجیکٹ فریڈم لوگوں کو بچانے کے لیے ہے، کسی پر حملہ نہیں کیا۔ ہم پر گولی چلائی گئی تو جواب دیں گے۔ ایران کو آبنائے ہرمز پر کنٹرول کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکہ نے 7 ایرانی فاسٹ بوٹس کو تباہ کر دیا۔ جانی تصادم کے باعث آبنائے ہرمز میں 10 سویلین سیلر ہلاک ہوئے۔ امریکی فوج کے لیے خطرہ بننے والے ڈرون اور بوٹس کو نشانہ بناتے رہیں گے۔ امریکہ زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیاں کہتے ہیں امریکہ چاہتا ہے کہ ایران مذاکرات کی میز پر یک طرفہ مطالبات مان لے۔ امریکہ کے سامنے سر تسلیم کرنا ناممکن ہے۔ سیاست کو اقتدار تک محدود کر دیا جائے تو نتیجہ وہی ہوگا جو آج کی دنیا میں ہے۔ انتشار، جبر، ناانصافی اور بحری قزاقی کو سیاست کا نام دیا گیا ہے۔ ہماری قومی روایات اور مذہبی فکر میں اخلاق کے بغیر طاقت بے معنی ہے۔ مخالفین بے لگام اور غیر ذمہ دار قوت کی علامت ہیں۔ آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی کو متاثر کرنے والی کارروائی کا سخت رد عمل دیا جائے گا۔ سربراہ ایرانی عدلیہ چیف جسٹس غلام حسین محسنی کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز میں سیکیورٹی کو متاثر کرنے والی کسی بھی کارروائی کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ دشمن کو ایرانی افواج کی جانب سے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ملکی سمندری حدود کے تحفظ کے لیے کام کرنے والوں کو مکمل قانونی حمایت حاصل ہوگی۔
वॉशिंगटन, इस्लामाबाद और तेहरान के दरमियान इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं। अल जज़ीरा टीवी ने दावा किया है कि तजावीज़ का तबादला हो रहा है, रेड लाइन्स पर बात हो रही है। अमरीकी मज़ीद हैं कि वो किसी और नुक्ते से पहले ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बात करना चाहते हैं। ईरानी चाहते हैं कि पहले ईरानी समंदरों की नाकाबंदी ख़त्म की जाए। जहां इन मुज़ाकरात के आगे बढ़ने के इम्कानात बहुत रोशन हैं, वहीं पर ख़तरा भी मौजूद है कि किसी एक वाक़े को लेकर तनाज़ा फिर से बढ़ सकता है। मार्का हक हमारे लिए सिर्फ एक यादगार वाक़या ही नहीं, बल्कि ये एक लकीर है जो हमने हमेशा के लिए खींच दी है। जो कोई भी इस लकीर के दूसरी तरफ है, उसे ये बात वाज़े तौर पे समझ लेनी चाहिए कि जो कुछ आपने उस वक़्त देखा उसमें हमारा ज़ब्त व तहम्मुल शामिल था। अगर आइंदा कभी हमारे बारे में कोई गलत अंदाज़ा या मिस कैलकुलेशन की गई तो हमारा रद्द अमल इससे भी कहीं ज़्यादा शिद्दत से और फैसला कुन होगा। मार्का हक पाकिस्तान की फैसला कुन अस्करी बरतरी और फौलादी कौमी इत्तेहाद का नाकाबिले तरदीद सबूत। मार्का हक के अजीम फतह ने भारत को पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और कौमी इत्तेहाद का वाज़े और दो टुक पैगाम दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मार्का हक सिर्फ यादगारी वाक़या नहीं, बल्कि एक वाज़े लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई है। मार्का हक से वाज़े हुआ कि आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब पहले से कहीं ज़्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। हमारी बर्री, बहरी और फ़िज़ाई अफ़वाज की जवाबी सलाहियत दुश्मन के तसव्वुर से भी ज़्यादा तेज़ और मरबूत है। पाकिस्तानी पुरअज़्म और पुरएतमाद नौजवान क़यादत का कहना था कि मार्का हक हमारे लिए एक ऐसी दास्तान है जो हम अपनी आने वाली नस्लों को सुनाएंगे। हमारी अफवाज ने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया, जिसका हमें पहले ही कामिल यकीन था। मार्का हक में भारतीय तैयारे की ज़मीन बोस होने की खबरें आ रही थी, जिससे हमारी खुशी बढ़ती जा रही थी। क्लास में मौजूद सारे तलबा के ज़बान पर एक ही नारा था, पाकिस्तान जिंदाबाद। जब हमारी फौज के कारनामों की खबरें आती थी, हम घर में नारा तकबीर लगाते थे। मार्का हक हमारे लिए एक आंखों देखी कहानी है जो हम अपनी आने वाली नस्लों को सुनाएंगे। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं कि जो रोबस्ट कैपिटल मार्केट्स हैं, दे आर इंजन्स ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ, वेदर इट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोबिलाइजिंग सेविंग्स, channeling capital, enabling risk sharing, and even more importantly, accessing long-term financing, whether those are startups or infrastructure projects. दुआ है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाज़ा जल्द ख़त्म हो जाए। इलाक़ाई कशीदगी के पेश नज़र मुहतात हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। हमारी क़यादत खिते में कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहर्रिक है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा हमारा फोकस करंट अकाउंट पर है। मुल्की मुआशी तरक्की में निजी शोबे की शमूलियत हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुश्किल हालात के बावजूद मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। मुआशी अशारियों में मुसलसल बेहतरी आ रही है। अफवाज और अवामी तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के मद्दे मुकाबिल बयानुन मरसूस की मानंद यकजा हैं। मार्का हक पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अहद की अक्कासी करता है। मुसल्लह अफ़वाज उभरते हुए ख़तरात के पेश नज़र मुस्तैदी और ऑपरेशनल तैयारी की आला सतह को बरकरार रखें। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। शुरा का कहना था कि उभरती हुई जियोपॉलिटिकल पेशरफ्त इलाक़ाई इस्तेहकाम पर गहरा असर डाल सकती हैं। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से रोकने की कोशिशों की हिमायत करता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कॉन्फ्रेंस में मार्का हक का यादगार साल मुकम्मल होने पर कौम और मुसल्लह अफ़वाज को मुबारकबाद पेश की। अमन की कोशिशों के दौरान खिते में एक बार फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। ईरान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमले जारी। अमाराती वज़ारत दिफा ने तस्दीक कर दी। हुकाम के मुताबिक ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं। हमलों को रोकने के लिए मुल्क का दिफाई निज़ाम मुतहर्रिक है। ईरान से आने वाले मिसाइलों और ड्रोन हमलों से निपटा जा रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात पर कोई हमला नहीं किया। तर्जमान पासदारान इनकलाब की तरतीब।
पाक बहरिया का बहिरा अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान नेवी की तारीफ करने पर मजबूर हो गया। भारतीय मीडिया की जानिब से पाक बहरिया के इंसानी बुनियादों पर किए ऑपरेशन की तारीफ। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाक बहरिया ने तकनीकी खराबी के बाद बहिरा अरब में फंसे हुए हिंदुस्तानी जहाज़ की मदद की। हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी समंदरी हुक्काम के दरमियान हम आहंगी के बाद अमले को इमदाद दी गई। MV गौतम पर मौजूद 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई अमले को हंगामी इमदाद फराहम की गई। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त की खबरें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें अचानक गिर गईं। मार्केट में नई हलचल। खाम तेल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 1.7% कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $107.98 फी बैरल तक आ गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 1.8% कमी से $100.44 फी बैरल पर आ गया। अबूधाबी की ऑयल कंपनी का खाम तेल भी 2% सस्ता हो गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने वकला का एक और देरीना मुतालबा पूरा कर दिया। लाहौर की अदालती तारीख का बड़ा प्रोजेक्ट जुडिशल टावर फेज 1 की संग बुनियाद रखने की तैयारियां मुकम्मल। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम 8 मई को जुडिशल टावर का संग बुनियाद रखेंगी। जुडिशल टावर में तमाम ज़िली अदालतों को एक ही मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। जुडिशल टावर के मंसूबे से लाहौर के अदालती निज़ाम को जदीद खतूत पर उसवार किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियन रॉयल मिलिट्री कॉलेज डेंट्रॉन की पासिंग आउट परेड। ISPR के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी कैडेट की बड़ी कामयाबी। सरदार अरसाम अब्बास ओवरऑल बेस्ट फॉरेन मिलिट्री कैडेट करार। सरदार अरसाम अब्बास का ताल्लुक PMA 152 लॉन्ग कोर्स से है। कामयाबी पाक फौज की जूनियर क़यादत के आला पेशावराना मायार, अज़्म, बेहतरीन कारकर्दगी का मज़हर। यह एजाज़ आला करदगी का मज़हर करने वाले गैर मुल्की फ़ौजी कैडेट को दिया जाता है। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। शोबिस शख्सियात का पाक फौज को ज़बरदस्त खराज तहसीन। मुल्की दिफा और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों और अजीम कुर्बानियों का एतराफ़। शोबिस शख्सियात ने कहा कि पाक फौज ने मार्का हक में भारत को ज़िल्लत आमेज शिकस्त देकर कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। जवान सरहद पर मुल्क की हिफाजत के लिए जानों का नजराना पेश करने को हमा वक्त तैयार रहते हैं। दुनिया में अमन के क़याम के लिए पाक फौज अहम किरदार अदा कर रही है। और भारत की इबरतनाक शिकस्त का 1 साल मुकम्मल। मार्का हक की मुनासबत से तकरीब का प्रोमो जारी। तो याद रखी उन्वान से जारी प्रोमो में मार्का हक की कामयाबियों को उजागर करके कौमी जज्बे को गरमाया गया। वलवला अंगेज प्रोमो 10 मई को पाकिस्तान मोनूमेंट पर होने वाली कौमी बुनियादुल मरसूस तकरीब के तनाजुर में जारी किया गया। मार्का हक में हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने साबित किया कि पाकिस्तान की सरहदें वो फौलादी दीवार हैं जिसे गिराना नामुमकिन है।